Welcome back to the feasts of the Lord. परमेश्वर का भोज में आपको फिर से स्वागत करते हैं। We're studying an amazing aspect of the ministry of the Lord Yeshua. प्रभु यीशुआ के सेवकाई के अद्भुत विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। We've been studying Psalm 110, which speaks of the eternal priesthood of the Lord Yeshua. भजन 110 के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पर जो यीशुआ की अनंत काल की याजक के विषय में बात करता है। But let's go back to 110 for a few minutes because there's a lot more than just priesthood happening here. इसलिए भजन 110 में फिर से हम जाएंगे कि याजकपन के विषय से बढ़कर और भी ऐसी बातें हैं जिस पे हम ध्यान दें। Because the Father says to the Son, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. क्योंकि पिता अपने पुत्र से कहता है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। And then the Lord speaks about the rod of strength He will put in the hand of Messiah to rule the earth in the midst of His enemies. और आगे कहता है कि परमेश्वर यीशुआ के हाथ में उस राजदंड की शासन देगा जो शत्रुओं के ऊपर वो शासन करेंगे। These qualities are not something you would normally think about in a priest. ऐसे गुणों को हम आम तरीके से याजकों के अंदर देख नहीं सकते हैं। You don't think about a priest sitting at the right hand of the Father. आप ऐसे देख नहीं सकते हैं कि याजक पिता के दाहिने हाथ बैठने पाए। You don't think about a priest having a rod of iron to rule the nations. कभी कल्पना नहीं की होंगे कि याजक के हाथ में लोहे के राजदंड जो जातियों पर राज्य करने के लिए। You don't think about a priest ruling in the midst of his fierce enemies. आप कभी ऐसे कल्पना नहीं किए होंगे उन्हें डराने वाले शत्रुओं के सामने याजक शासन करता हुआ। You don't think about a priest executing the kings in the day of his wrath. कभी आपने कल्पना नहीं की होंगे कि याजक लोग अपने क्रोध में लोगों को वध करता हुआ। You don't think about a priest judging all the nations and filling them up with dead bodies. आपने कभी कल्पना नहीं की होंगे कि जातियों पर दंड देते हुए शासन करते हुए उन लोगों को मार गिराते हुए। You don't think about a priest executing the heads of nations at the United Nations. संयुक्त राज्यों के सामने याजक लोग कई जातियों की लोगों को सर काटता हुआ आप देखने नहीं पाए होंगे। So there's something really mysterious and hard to understand about Psalm 110. इसलिए भजन 110 का एक ऐसी भेद है जो लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। It talks about in the day of Messiah's power, he will have a volunteer army. यहाँ पे इस प्रकार कहा गया है कि वो अपने लिए एक स्वेच्छा बलि, एक सेवक लोग, सैनिक लोग उसके लिए खड़े होंगे। In the middle of all this military discussion, the Father says, I have sworn and I will never change my mind. You are a priest forever according to the Melchizedek priesthood. कभी आपने सोचा नहीं होगा कि युद्ध की रणनीति की बातों के बीच में यहोवा परमेश्वर हाथ उठा के शपथ खाते हुए कहता होगा कि ये मेल्कीजेदेक की रीति पर के लिए सदा का याजक बनेंगे। So how do we reconcile this seeming contradiction between a military king and a priest forever? इसीलिए ये जो बातें एक दूसरे के लिए हमारे लिए विपरीत लगता है कि जैसे एक सैनिकों का राजा और एक महायाजक के बीच में संबंध के बारे में। Well, the kind of priests we're used to in the Bible are the priests according to the line of Aaron, Moses' brother. बाइबल में बताई गई याजक लोग हारून के वंशों में से आने वाली वो याजक लोग हैं। Those priests were descended from Aaron and Aaron was descended from Levi. और वो याजक लोग हारून के परिवारों में से होते हैं और हारून के परिवार लेवी गोत्र में से हैं। And you know what were the responsibilities of that tribe? उस कुल का जिम्मेदारियां क्या है अब जानिए। To show mercy to the people. लोगों के लिए दया प्रकट करें। To offer sacrifices that God could accept. ऐसे बलिदानों को चढ़ाए जो परमेश्वर स्वीकार कर सके। To create worship and singing and praise 24 hours a day. 24 घंटे आराधना स्तुति प्रशंसा करवाने पाएं और शुरुआत कर सकें। To bless the people and bring them closer to God. लोगों को आशीष दें और उन्हें परमेश्वर के करीब ले आने पाएं। And to teach the people the word of God and explain to them what it really means. लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाएं और वास्तविक रूप में उनके लिए क्या मतलब रखता बताएं।
So if Yeshua had been born to the tribe of Levi under Aaron, he would be that kind of a priest. आरोन के नीचे अगर आपने लेवी कुलों में से अगर जन्म लिए होंगे, आप उस प्रकार की याजक बनते। And then the father wouldn't be describing him as a military ruler and a fierce king who will be executing many presidents and leaders. तब परमेश्वर इस प्रकार उसकी विवरण नहीं देंगे कि ऐसी याजक जो कई राजाओं का न्याय देता हुआ, उन्हें मार गिराता हुआ, उनके बीच में शासन करता हुआ। Now remember, Psalm 110 is the second mention of the person Melchizedek in the entire Bible. इसलिए याद रखिए, भजन 110 जो है दाऊद का एक ऐसा भजन है जो दूसरी बार मिल्कीजिदक के विषय में बात किया गया है। And of course, the first mention was back in Genesis 14 with Abraham. हाँ, निश्चय जो पहली बार जिनका नाम आया गया है उत्पत्ति 14 अध्याय का 18वां पद में देखते हैं। And when he blessed Abraham, do you remember what the story was around that blessing? जब उन्होंने अब्राहम को आशीष दिया था, क्या आप उस आशीष के पीछे जो कहानी है उस विषय में जानते हैं? Abraham had just come back from fighting a major battle with a huge number of king's armies from the north. अभी अब्राहम एक बड़े युद्ध से वापसी आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे महान और बड़े राजाओं के विरोध में लड़ने के बाद। Melchizedek blessed Abraham after Abraham came back from defeating 4 major kingdoms of that day, wicked kingdoms. उस दिनों की बहुत ही दुष्ट 4 राज्यों को मार गिराने के बाद अब्राहम वापस आ रहे हैं। So in this psalm it says, in the day of your power, your people will be volunteers, meaning volunteers in your army, God. और इसलिए यहाँ पर जो लिखा गया है, पराक्रम के दिन आपके लोग स्वेच्छा बलि के साथ यानी स्वयं की इच्छा के साथ सेवा में आएंगे। And you remember that Melchizedek was not merely a priest, but he was the king of righteousness and the king of Jerusalem. आपको याद होगा कि मेल्कीजिदक सिर्फ याजक ही नहीं, वो सालेम का राजा, यरूशलेम का राजा भी है। And in the Bible, another word for Jerusalem is Zion. बाइबल में यरूशलेम का दूसरा शब्द है सियोन। And so the Bible says, rule with your strength. The Lord will give you a rod of strength out of Zion. Rule in the midst of your enemies. बाइबल कहता है कि पराक्रम के साथ लोगों पर शासन कर, तब परमेश्वर उसके लिए ताकत देंगे और वो राजदंड उनको देंगे। So the enemies that Abraham defeated were enemies of God and enemies of Zion. और इसलिए जिन शत्रुओं को अब्राहम ने मार गिराया, जिन पे जीत लिया है, वो यहोवा का शत्रु लोग हैं। And so we can understand Psalm 110 as defining a new kind of priesthood, which includes ruling, reigning, and military victories. और इसीलिए भजन 110 को हम समझ पाएंगे कि ऐसे याजक के विषय में कहा गया है जो शासन करेगा और वो लोहे के राजदंड के साथ लोगों के ऊपर शासन करेगा, राज्य करेंगे। Can you see that the Lord is combining the priestly role and the kingly military governmental role together? यहाँ पर हम देखने पाते हैं परमेश्वर याजकी के कार्य को उस सैनिकों के द्वारा और एक बड़े सरकारी राज्य कार्य करने वाली एक राज्य के कार्य को भी जोड़ता हुआ देखते हैं। Now, did the writer of Hebrews understand this king-priest connection? क्या इस भजन को लिखने वाला लेखक याजक और राजा की जो जोड़ है वो समझ पाया है? Yes, because look at verse 5 of Hebrews chapter 5. हाँ, आप उस जो है देख सकते हैं इब्रानियों के 5वें अध्याय के 5वें पद में। Before the writer of Hebrews quotes Psalm 110, इब्रानियों के लेखक भजन 110 को फिर से बताने से पहले, which we find in Hebrews chapter 5 verse 6, जो हम इब्रानियों 5वें अध्याय के 6ठे पद में देखते हैं, but before that in Hebrews 5 verse 5, the writer says a line from Psalm 2. और हम यहाँ पर देखने पाते हैं इब्रानियों के लेखक 5वें अध्याय के 5वें पद में कहता है कि उससे पहले भजन 2 के साथ संबंध करें। So before he quotes Psalm 110 about a priest forever,
he quotes Psalm 2, which we're going to look up right now. भजन 110 के बारे में लेखक इब्रानियों के लेखक बताने से पहले भजन 2 के विषय में बताता है जिसे हम अभी देखने वाले हैं। And the writer of Hebrews says, Messiah did not glorify himself to become a high priest, but the Father said to him, You are my son, today I have begotten you. इब्रानियों के लेखक 5वें पद में कहता है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। So let's go back to Psalm 2 and look at some of the key points. इसलिए हम भजन 2 में जाएंगे और उसकी कुंजी बातों पर ध्यान देंगे। It opens with these nations in raging rebellion against God's covenant. और उसकी शुरुआत में बताता है जाति जाति के लोग परमेश्वर की वाचा के विरोध में कैसे वो उसके साथ बैर करने विरोध करने आते हैं। We see a picture of wicked kings rebelling against God and his people. हम देखने पाते हैं कि दुष्ट राजा लोग यहोवा के लोगों के विरोध में यत्न करते हुए और बलवा करते हुए देखते हैं। Why do the nations rage and the peoples plot a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord, that's his covenant name, against the Lord and against his anointed one, saying, Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा के और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंकें। First of all, again, we see King David realizing there are two persons of God that are being described here, the Lord and his anointed one. सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद दो व्यक्तियों के बारे में विवरण देता है, वो यहोवा परमेश्वर और दूसरा उसका अभिषिक्त। Now, the word anointed in English means poured with oil. अभिषेक का जो अंग्रेजी शब्द का मतलब है जिसके ऊपर तेल उंडेला गया है। And in Hebrew, the word for anointed is Mashiach. इब्रानियों में अभिषेक का जो शब्द है मसीहक। Now, if you take the Hebrew word Mashiach and just change it a tiny bit into the English language, you get the word Messiah from Mashiach. इब्रानी शब्द मसीहक का उस शब्द को अगर थोड़ा सा बदल के देखेंगे हमारे जो शब्द आता है मसीहा। Now, in Hebrew, the word Mashiach means one who had oil poured upon his head. इब्रानियों में मसीहक का जो मतलब है एक व्यक्ति जिसके ऊपर तेल उंडेला गया है। And when the Greek writers of the New Testament translated the Hebrew word Mashiach, the Greek word is Christos. यूनानी लेखक जो नए नियम में इस मसीहक जो इब्रानी शब्द को अनुवाद किया उन्होंने लिखा यूनानी भाषा में क्रिस्तोस। So where we get the name Christ is from the Greek word Christos, which means anointed one in Greek. क्रिस्त करके शब्द कहाँ से मिला? जो यूनानी शब्द क्रिस्तोस है उसमें से मिला है जिसकी मतलब अभिषेक किया गया। So King David is saying that the nations or the kings are rebelling against Yehovah, the Lord, and against his anointed Messiah by his right side. इसलिए राजा दाऊद यहाँ पर विवरण देता है हाकिम और उस सारे राजा के लोग मिलकर किसके ऊपर? यहोवा और अभिषेक किए के विरोध में कार्य कर रहे हैं। Doesn't this remind you of Psalm 110, where the Father says to the Son, Sit at my right hand until I make your enemies your footstool? क्या ये भजन 110 को याद नहीं दिलाता जहाँ पर पिता परमेश्वर अपने पुत्र से कहता है मेरी दाहिनी ओर बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को आपके चरणों की चौकी ना कर दूं। And doesn't it remind you of the verse in Psalm 110 that says, Let the rod of your strength rule out of Zion? क्या वो आपको भजन 110 का छठा पद याद नहीं दिलाता ताकि जाति जातियों के ऊपर राजदंड के साथ जो लोहे का है जिस पे तू शासन करें? And doesn't it remind you of the verse that says, Rule in the midst of your enemies?
क्या उस वचन को आपको याद नहीं दिलाता, शत्रुओं के बीच तू शासन कर। Now, in Psalm 2, let's look at verse 3, where it's quoting the attitude of the wicked nations. इसलिए हम भजन 2 के तीसरे पद के ऊपर हम ध्यान दें, जहां पर शत्रुओं की विचारधारा के बारे में बताया जाता है। Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। What bonds is he talking about? कौन से बंधन के विषय में बात कर रहे हैं? What cords do the nations want to break away from? कौन सी रस्सियों को जाति लोग तोड़ना चाहते हैं? They don't want to be bound or constrained by righteousness or lawfulness or obedience. वे लोग धार्मिकता की और व्यवस्था की या कानूनों की बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। Because the law of God constrains us from sinning. क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था हमें पाप से रोकता है। Do you remember once the Apostle Paul said, I used to be a slave of sin, but now I'm a slave of righteousness. Remember that? आपको याद होगा प्रेरित पौलुस कहते हुए कि मैं पहले पाप के अधीनता में था, मगर अब मैं धार्मिकता के अधीन में हूँ। When he says a slave of righteousness, it doesn't mean that God took away his free will. जब वो कहता है कि मैं धार्मिकता के अधीन में हूँ, इसके मतलब ये नहीं परमेश्वर ने उनकी स्वयं की इच्छा की स्वतंत्रता को निकाल दिया है। Remember I said God wants voluntary servants and voluntary lovers, right? आपको याद होगा कि मैंने बताया परमेश्वर चाहता है स्वयं इच्छा उसकी सेवा करने वाले, स्वयं इच्छा के साथ उससे प्रेम करने वाले। So because we love him, we volunteer ourselves to be bound to his ways and his truth. क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसलिए हम स्वयं इच्छा के साथ अपने आप को परमेश्वर के उस कार्य में हम उसके साथ बंधन में लग रहने के लिए चाहते हैं। So when the Messiah is ruling the nations with a rod of iron, what does that look like? जब मसीहा जातियों के ऊपर लोहे के राजदंड के द्वारा शासन करता है तो इसके मतलब क्या है? Let's put it really simply. हम उसे सरल तरीके से डाल दें। It means what the nations get away with now during this age, they will not get away with when the king is seated on the throne. जो बातें आज लोग बहुत आसानी से टाल देते हैं, बदल देते हैं, उन बातों को जब परमेश्वर यीशु सिंहासन पर राज्य करते हुए आएगा तब नहीं कर सकते हैं। Right now, most nations are not even a little bit under the righteousness or the laws of God. बहुत सी आज की जातियां परमेश्वर की व्यवस्था और उस धार्मिकता के थोड़े भी उसकी अधीनता में नहीं हैं। To some small degree, many civilized nations still have a memory of right and wrong as God would define it. कुछ जातियां जो सभ्यता से हैं, वे परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन उस अच्छे और बुराई को कुछ हद तक जानते हैं। For example, in most nations, it's against the law to murder someone, which is a reflection of God's law. उदाहरण स्वरूप बहुत से देशों में हत्या करना उनके कानून के विरोध में है, जो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार है। But Yeshua, the Lord, told us that as the days get darker and darker, lawlessness will increase. यीशु मसीहा ने बताया है कि जैसे उसके आगमन के दिन करीब होता जाएगा कि वहां पर हम देखने पाएंगे अधर्म बढ़ता चला जाएगा। And so the nations and their leaders will be angrier at the Lord and not willing to come under even righteous restraints. इसलिए जातियों की वो अगुवे और शासक लोग परमेश्वर से बैर करेंगे क्योंकि उस धार्मिकता के अधीन में आना नहीं चाहते हैं। In our next episode, we will continue this discussion of the coming government of God. हमारे अगले सत्र में परमेश्वर की आने वाली उस सरकार के विषय में अध्ययन करेंगे। And until then, may the Lord continue to bless you. तब तक आपको परमेश्वर लगातार आशीष देने पाए। Amen. आमीन।